Hello, welcome to you all. Welcome to ISF College of Pharmacy Dialogue Series, online dialogue series. In this, you know that ISF College of Pharmacy is continuously bringing up pharmaceutical eminent speakers and scientists to this online dialogue series under the aegis of Internal Quality Assurance Cell. On behalf of ISF College of Pharmacy, Moga, Punjab, I, Dr. Saurabh Kose, welcome today's eminent speaker, Dr. Hitesh Kataria, sir. Welcome to you, sir. And I would like to introduce Dr. Hitesh Kataria, sir, to our all India audience today on this YouTube platform of ISF College of Pharmacy. Dr. Kataria is PhD MPharm in pharmaceutical technology, and sir has also does PG diploma in drug regulatory affairs. Right now, Dr. Hitesh Kataria is working as associate professor Srimati SM Shah Pharmacy College, Mahadabad, Gujarat, India, and he is known for his various outstanding initiatives. If we talk about his research experiences, he has worked for almost 10 to 11 years in academia. He has guided more than two dozens of students. He has done his PhD from Hemchandra North Gujarat University. He has done his PG DRA from Gujarat University. He has done MPharm from Raman Bhai Patel College of Pharmacy. He has done Pre-Pharma Institute of Pharmacy, Nirma University. He has been qualified with GPAT in 2011, completed certificate course by DOE-ACC with A grade in 2011, completed certified course on quality by design and design of experiment held at Anand College Pharmacy in 2050. He has handled various projects, formulation, development, and characterization of solid lipid nanoparticles of BC class 2 drugs at PhD level at Hamchandra North Gujarat University, Patan, Gujarat. He has been included into various project levels at undergraduate and postgraduate levels in pharmacy. He has faced various grants for refresher course conducted by obtained by Gujarat State Pharmacy Council of almost 25,000 for year 2018, 18 and 17. And he has been instrumental in various platforms, and he has got various numerous eminent awards and honors like national level best research award by Pharmamedics India Jaipur, eminent pharmacy award organized by Research Scholar Hub Ahmedabad, international education awards 2017 for young pharmacy teacher in Gujarat organized by Times Cyber Media at January 28 2018 New Delhi, young scientist award organized by Research Scholar Hub Ahmedabad, appreciation award from BGLD Trust for dedication to pharmacy profession and extraordinary work, Dr. H.S. Chandel Memorial Teachers Awards awarded by NFPS Summit 2018 organized by NFPS in Hyderabad. Green Thinkers Bright Educator Award, Global Teacher Award 2019 nominated in IHAB Super 30, Prominent Alumni Award, National Education Excellence Achievers Awards, Award for Contribution to Education Community, Bharat Gaurav Puruskar, India Education Star Icon Achiever Awards, Student Project of the Year in Student Project Program 2022, winners in oral presentation in ISPER 11th Annual National International Conference and Exhibition. He has published more than, I would say, that two dozens of paper. He has published many books and many research papers, and he has been filed with various patents. He has been instrumental and attended various national and international conferences, workshops, seminars, symposia, etc. to his credit. If I talk about his achievements, it would take whole day. Without taking much time, now I would like to invite Dr. Hitesh Kataria, sir, for his talk. Welcome to you, sir, once again to ISF College of Pharmacy, Moga, Punjab. You can start your Thank you. presentation, sir. Thank you so much, sir, for your nice introductions of me. Okay, sir, screen is visible? Yes, sir. The screen is visible and you are very audible, sir. You can go ahead. All the Okay. best, sir. Okay. So let's start. Good afternoon, all of you. And myself, Dr. Hitesh Kataria, Associate Professor, Srimati SM Shah Pharmacy College. And thank you so much, Saurabh sir, for giving me this opportunity to talk about importance and advantages of GPAT
So in this session, actually, I will cover why GPAT is important and some topics regarding some tips and tricks regarding GPATs, some books name of GPAT, and I also discuss about how to prepare and how to do last minute revisions. Means if we talk about LMR, last minute revisions, and also give some screenshots regarding AICT NT exams. So it will completely regarding GPAT. Okay, so let's start. तो एज वी नो, जब स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में आता है तो उससे पहले why choose pharmacy? Pharmacy, why student have selected pharmacy? So there are number of options are there like he or she had not means receive got admission into MBBS or any other medical field, then not got too much percentage, etc. Many reasons are there. Then pharmacy is one of the good options. एंड जब भी माइंड में ऐसा आता है कि फार्मेसी तो ले लिया, अब क्या? तो जैसे फार्मेसी लिया है, तो इफ यू आर एंटर्ड इन फार्मेसी कॉलेज, देन व्हाट हैपन व्हेन वी कम इनटू द फार्मेसी कॉलेज? तो आई विल शो यू अ सिंपल लाइफ ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज of pharmacy. So this is a college life of pharmacy student. When it come to the first year, when it come to the first year, what happen? It all about the learning. Means उसके नया होता है बच्चे, उसके माइंड में पूरा नया नया फोकस कि अभी तो फार्मेसी क्या है वो उसको समझना है। न्यू एनवायरनमेंट्स होते हैं, पूरा न्यू सर्कल्स क्रिएट होता है। अभी फार्मेसी में जब भी फर्स्ट सेम में आता है, फर्स्ट क्लास में आता है, फर्स्ट ईयर में, तो उसके लिए सब नया है। अभी उसके साथ सम आर स्टूडेंट्स नॉट मीन्स फैमिलियर विथ इंग्लिश लैंग्वेज, तो समटाइम्स इंग्लिश के लिए भी सम मेनी टाइप ऑफ हर्डल्स होते हैं कि अंडरस्टैंड टू इंग्लिश, देन कन्वर्ट मीन्स हिंदी टू कन्वर्ट इंग्लिश एंड राइट many questions answer. So first year is very sometimes it's all about learning and new environment circles and all. So I think you can see emoji at that time. You can get like smiley life type of your life is going on. It's good. Okay, some types of hurdles are going on, but it's okay. Then second year what happens? It's also about learning, but यहाँ से एक शुरुआत होती है कि यहाँ से थोड़े बैकलॉग की एक शुरुआत हो जाती है बीफार्म के क्लास के बाद, फर्स्ट ईयर के बाद। अगर कोई लोग क्लियर किया तो फर्स्ट ईयर, अगर कुछ बैकलॉग आ गई तो एक शुरुआत होती है। और उसके साथ ऐसा भी होता है, बच्चों को ऐसा लगता है कि दे आर फीलिंग लाइक सीनियरिटी फीलिंग, बिकॉज़ उसके साथ जूनियर उसके अंडर क्लास में आते हैं, तो उनको फील होता है कि अभी हम थोड़े बड़े हो चुके हैं। एक्चुअली व्हाई आई एम शोइंग यू दैट एक्चुअली दिस इज़ अ मेंटालिटी राइट नाउ। स्टूडेंट की मेंटालिटी थोड़ी अलग है, तो हम एक्चुअली मेंटली को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक्चुअली ये कॉलेज लाइफ दिखाई है। एक्चुअली फर्स्ट ईयर में जो बच्चा आता है तब उसको कुछ नहीं पता होता है, ही डज़न्ट नो एनीथिंग, यू नो, वो फार्मेसी को समझने का ट्राई करता है। सेकंड ईयर में आता है तो एक सीनियरिटी फीलिंग आती है, अगर वो पास हुआ तो अच्छा, तो आगे बढ़ने के लिए ट्राई करता है कि चलो अभी आगे बढ़ना है, फार्मेसी चल रहा है ऐसा। तो वेरी हैप्पी है। लेकिन थर्ड ईयर में जब आता है, व्हेन इट कम टू द थर्ड ईयर, like sometimes it's very heavy feel. Why actually it's heavy feel? Is sometimes what happen when it come to third year, it knows कि नहीं अब तो मैं सेमेस्टर अभी मैं तो बीफार्म के बीच में आ चुका हूँ, अभी बस 2 ही साल बचे हैं मेरे, तो बस अब तो खत्म होने वाला है मेरा फार्मेसी। तो समटाइम्स अगर बैकलॉग की जो शुरुआत सेकंड ईयर से होगी, अगर वो ज़्यादा हो गई तो उसको क्या करना है? तो उसके लिए वो भी एक रहेगा। और एन्जॉयमेंट पर्सनल कॉम्प्लिकेशंस तो होते ही हैं। वो तो सब जो है फर्स्ट सेम से जो चलते हैं वो एक्चुअली कंटिन्यूस ही रहते हैं। लेकिन थर्ड ईयर इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ईयर to choose your career path. For example, if you are prepared for 10th, because why? Because you have to go to 11th standard, then 12th standard, and after 12th, you are preparing for 12th. Why? You have to take admission into the like different pharmacy or any medical field or etc. anything. But what after BPharm? Yes, because बच्चों को पता नहीं होता है कि आफ्टर बीफार्म व्हाट हैव टू डू, तो उसके लिए प्रिपरेशंस तो पहले से करनी पड़ती है। और जो भी प्रिपरेशंस करनी है, इसके लिए जो बेस्ट टाइम है, वो एक्चुअली थर्ड ईयर है। फिफ्थ सेमेस्टर इज़ द वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट to any type of exam, preparation of any type of exams. If you are preparing any competitive exams, fifth semester one of the good
ईयर 5th सेम, बिकॉज़ 5th सेम खत्म हो गया, बाद में 4th सेम आएगा, फाइनल ईयर आएगा। फाइनल सेम में तो आप सबको पता है कि प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, सब स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या? फिर फाइनल हो तो फाइनल ईयर खत्म हो गया, बाद में क्या करेंगे? तो बच्चे को एक्चुअली स्टूडेंट नॉट क्लियर्ड देयर गोल। So if you are preparing for IELTS, and if you want to go to abroad, so you have to start with for IELTS or anything, means abroad exams. You have to start from 5th year. If you are planning for M.Pharm or anything, then you have to start from 5th year. If you are planning for job, means you have to planning for job. You have to also start preparation from 3rd year. If you are do anything, you have to give 1 or 2 years for that your goal. Otherwise, your goal will not you will not reach to your goal. For that, 3rd year is very important. एंड वी नो कि ऑल पीपल्स ऑल स्टूडेंट्स आर मीन्स जब जितने भी बच्चे होते हैं वो एक्चुअली फाइनल ईयर तक वो कंफ्यूज ही रहते हैं मेरे को क्या करना है, एम फार्म करना है, बी फार्म, एम फार्म के बाद एम फार्म करना है, नहीं करना है, मुझे एमबीए करना है, जो भी करना है, लेकिन एक एक गोल नक्की करना है कि मेरे को आगे बढ़ के क्या करना है। तो वो एक्चुअली हमको फिफ्थ सेम में ही करना पड़ेगा। और आगे जाके फाइनल ईयर आता है, तो फाइनल ईयर में क्या होता है कि यस चलो बेस्ट ऑफ योर लीव्स एंड ट्राई टू क्लियर व्हाटएवर योर बैकलॉग्स, लीव्स, पर्सनल कॉम्प्लिकेशंस, प्रिपेयर फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कैंपस प्लेसमेंट्स एंड व्हाट हैपन लास्ट में फेयरवेल एंड गुड बाय। ओके, तो दिस इज कॉलेज लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स। जब बच्चा फर्स्ट ईयर से आता है, फाइनल से निकल जाता है, तो उसको पता नहीं है कि मुझे बी फार्म के जाके आगे क्या करना है। कोई वो एक्चुअली पूरे का पूरा कंफ्यूज रहता है। तो उसके लिए जो अपना कन्फ्यूज़न है, उसको आगे अपना गोल है, वो एक्चुअली फिफ्थ सेम से अगर काम करेगा, वो सोचेगा, तो उसके साथ 2 साल रहेंगे कि उसको क्या करना है। अगर उसको अगर लगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम नॉट कंपैटिबल विथ IELTS एंड दैट, सो वी कैंसल योर प्लान टू गो फॉर अब्रॉड एंड स्टडी इन इंडिया एंड फॉर प्लानिंग फॉर अनदर एग्ज़ाम्स एंड ऑल। तो यू कैन टेक, आप ट्राई कर सकते हो कि अगर मुझे आगे बढ़ के क्या करना है। तो अगर एक आपके पास साल रहेगा, 2 साल रहेंगे, तो अगर आपको कैसे प्रिपरेशन करें उसके बाद आपके पास समय बचा रहेगा। अगर फाइनल ईयर में आओगे, फिर सब स्टार्ट करेंगे, तो समय ही नहीं रहेगा। और दूसरी बात, तो जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, इतनी ईज़ी तो होती नहीं है, कि अगर 1 दिन या 1 महीना तैयार करो आप पास हो जाओगे। उसके लिए में डेढ़ महीना, 2 साल देने पड़ते हैं। देन यू विल गेट गुड रिजल्ट्स, अदरवाइज़ यू कांट गेट गुड रिजल्ट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट हैपन इन ऑल माइंड ऑफ स्टूडेंट्स? द बिग क्वेश्चन इज़ नाउ व्हाट? अगर बच्चा फाइनल ईयर में आ गया, बस स्टूडेंट्स आप अगर स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में आ गए, नाउ व्हाट? How to have an awesome final year? Why I have written awesome final year? Because जब भी आप फाइनल ईयर से कंप्लीट करके मीन्स आप 8 सेमेस्टर से निकलो, तब आपके पास अपना गोल होना चाहिए। If you are planning for abroad, you have cleared IELTS or any abroad exams with good band, okay? If you are planning for M Pharma, for you have to clear GPAT qualified, means GPAT आप दे सकते हो और वो भी क्वालिफाइड होनी चाहिए। If you are planning for MBA, SET, PG SET, SET or any CAT exams, you have to give and you have to clear that, crack your that type of exams. Because अगर आप फाइनल ईयर कंप्लीट करते हो, उसके साथ दिस टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और इफ यू सिलेक्टेड योर गोल, जो भी अगर आपने मेडिकल स्टोर भी अगर ओपन करना चाहा, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, अगर वो सब मेडिकल स्टोर भी हो गया, सब हो गया। तो अगर बीफार्म होने के बाद आप जॉइन करते हो, कंपनी में अगर जॉब चालू करनी है, तो आप प्लेसमेंट जो भी कॉलेज में आते हैं, उसके साथ कनेक्ट हो जाओ और इंटरव्यू क्रैक करके जॉब पालो। तो अगर फाइनल ईयर से बाहर निकलोगे, तो ये आपका जो फाइनल ईयर होगा, तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन almost 50 to 80% स्टूडेंट्स दे आर कंफ्यूज्ड, दे हैव नॉट सिलेक्टेड देयर गोल कि मुझे फाइनल ईयर के बाद क्या करना है। वो देखा जाएगा आगे बच्चे जाके क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो सोच के ही सब चलता है। तो वो हमको सॉल्व करना है कि ये मेन क्वेश्चन है कि बच्चा जब भी स्टूडेंट्स फाइनल ईयर से बाहर निकले, उसको उसको साथ अपने गोल के साथ बाहर निकलना है कि यस मेरे को ये करना है और ये करना था, मैं उसके साथ वेंटर हो रहा हूँ। ओके? नाउ नेक्स्ट, सो बच्चे को अब स्टूडेंट्स को क्या करना है?
तो स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। फॉर मैंने बोला कि अब्रॉड जाना है, फिर उसको अगर एम फार्मा करना है, फिर उसको जीपेट बी-फार्म या जॉब करनी है, या फॉर एग्ज़ाम्पल वो एमबीए वगैरह करेगा और कोई अदर फील्ड चूज़ करेगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन मैं जो यहाँ पे जो जीपेट की प्रिपरेशंस के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे जीपेट सब लोग क्या समझते हैं कि हमको सिर्फ़ एक एम-फार्म के लिए चाहिए या कुछ फॉर स्टाइपेंड पर्पज़ ओनली। लेकिन मैं यहाँ से दिस इज़ माय पॉइंट कि मैं आपको ऐसे बताऊँगा कि जीपेट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जीपेट, और जीपेट के लिए आपको एक्स्ट्रा कोई प्रिपरेशंस करनी नहीं है। यू यू कैन डू इन रूटीन योर एज़ पर योर कॉलेज लाइफ यू कैन डू रूटीन में आप कर सकते हो। रूटीन में ही सब करना है। तो उसके लिए क्या करना है? लेकिन उसके लिए पहले तो आपको जीपेट के लिए एनरोल होना पड़ेगा, जीपेट के लिए स्पेशली थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। सब लोग जीपेट को इम्पोर्टेंस देते हैं, कई लोग नहीं देते। लेकिन जीपेट का कोर्स सिमिलर लाइक दैट बीफार्म का कोर्स के सिमिलर ही है। तो आपको कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशंस जैसे एमबीए करना हो, तो आपको कैट के लिए अच्छे अगर स्पेशली उसके कोचिंग क्लास, पूरा फील्ड ही अलग है, तो उसके लिए पूरा बेसिक फंडा ही अलग है, उसके लिए प्रिपरेशन वगैरह करनी पड़ती है। लेकिन जीपेट के लिए ऐसा नहीं, जीपेट जो हमने एक फर्स्ट टू फाइनल जो पढ़ा है, वही का वही आता है। लेकिन उसमें बेसिक फंडा ज़्यादा आते हैं, ओके? तो हमको क्या करना है? तो पहले तो उसके लिए पहले तो हमको जीपेट क्या है वो समझना है, जीपेट का इम्पोर्टेंस समझना है, फिर उसके टिप्स मैं वगैरह आपको बताऊँगा, फिर वी कैन सॉर्ट के जीपेट कैसे ली जाती है, रिवीज़न कैसे करेंगे वो वगैरह बताएँगे। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये सब जितने भी आपके ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शन में मेरे यहाँ जीपेट है। मैं आपको ये आज प्रूव करके दिखाऊँगा, ठीक है? तो हम शुरुआत करते हैं पहले से, तो इंट्रोडक्शन ऑफ जीपेट। ओके, तो एज़ वी नो फुल फॉर्म ऑफ जीपेट इज़ ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, पहले उसका नाम गेट था, बाद में 2010 में फिर उसका जीपेट का नाम हो गया, फिर सब लोग या जीपेट बोलते हैं, फिर जीपेट अलग-अलग ऑर्गेनाइज़ेशन थ्रू भी हैंडल किया गया, अब उसका हैंडलिंग एनटीए थ्रू नेशनल टेस्टिंग एजेंसी थ्रू होता है। इसका टेस्ट ड्यूरेशन जनवरी के 3rd या 4th वीक में ये एग्ज़ाम्स एक्चुअली होती है, लेकिन आफ्टर द कोरोना इट विल ट्रांसफर टू अप्रैल और मई, लेकिन हर साल इट विल बी ऑन जनवरी 3rd और 4th वीक। ऑलमोस्ट वी एज़ वी नो टेस्ट ड्यूरेशन 3 आवर्स ऑनलाइन। ये कंप्लीटली ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है, लेकिन ऑफलाइन टाइप होती है। वहाँ पे जो सेंटर्स होते हैं, वहाँ आपको जाने का होता है और वहाँ पे आपको एग्ज़ाम्स देनी होती है। पैटर्न 125 एमसीक्यूज़ उसमें 4 मार्क्स इफ यू गिव करेक्ट आंसर यू विल गेट 4 मार्क्स, इफ यू गिव रॉन्ग आंसर you will get minus negative. Syllabus is completely for your BPharm topics, whatever you have already read, already you studied in your BPharm. And ideal time of preparation in fifth semester. Why fifth semester is because I already discussed with you why fifth semester is important. Okay, this is about some full form or this is a basic information regarding GPET. Now it is completely handled by National Testing Agency, NTA. ओके, तो एनटीए क्या करता है एक्चुअली, पहले अलग-अलग एजेंसी या वगैरह लेती थी एग्ज़ाम्स। फिर जब मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने ये सब पूरा डिपार्टमेंट ही एक एक कंप्लीट एक डिपार्टमेंट्स उन्होंने डेवलप किया, जिसका नाम दिया उनको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उनका काम ही होता है कि उन्होंने एक जिसकी भी जितने भी फील्ड्स हैं वहाँ का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, तो वो एक्चुअली ऑर्गेनाइज़ करने की, हैंडल करने की पूरी जवाबदारी और फेलोशिप्स वगैरह कंप्लीटली हैंडल by National Testing Agency, who has been established as a premier specialist, autonomous or self-sustained testing organization to conduct entrance examination for admission or fellowship in higher educational institutes. Or these are the different fields in which NTA is connected. Like NTA is connected in engineering, it also connected in medical, it also connected in management, it also connected in pharmacy, and it also connected college and university teaching and fellowships. ओके, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो इतनी जितनी भी फील्ड है ये सब में कनेक्टेड है। उसकी एंट्रेंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कंप्लीटली हैंडल्ड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ओके, तो हमने क्या देखा कि सबले बेसिक इंफॉर्मेशन बाय ऑफ जीपेट एंड देन हैंडल्ड बाय एनटीए। नाउ आई विल शो यू और
we will show different importance of GPAT. Okay, so I think if you are a student, then you will think that why मेरे को क्यों जीपेट देनी चाहिए? बस मुझे एम फार्म करना है इसीलिए मैं जीपेट देनी चाहिए। और अगर मैं जीपेट क्वालिफाई हूँ ना तो आई विल गेट 12,500 रुपीज़ स्टाइपेंड। अभी लास्ट में ये चल रहा है तो अभी अपने 12,500 रुपीज़ स्टाइपेंड पर मंथ वी कैन कैलकुलेट उसके हिसाब से बात करेंगे। तो 12,500 रुपीज़ मिलेंगे और मुझे एम फार्मा करना है इसलिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है पहले तो। लेकिन यस, वन ऑफ द गुड स्कोप और वन ऑफ द वी कैन केयर बेनिफिट्स ऑफ एम-फार्म, जीपेट इज इम्पोर्टेंट। इफ यू आर प्लानिंग फॉर एम-फार्म or if you're planning for to take admission in good institute, then M-Pharm, then GPAT is necessary. Or we can say that if you are if you are GPAT qualified, then you are eligible for some exam entrance exam of some institute. Okay, so GPAT is national levels entrance exam. अगर आपने एक्चुअली M-Pharm में एडमिशन दो हिसाब से होते हैं, पहले तो GPAT के हिसाब से और दूसरे अगर आप if you are not GPAT qualified, then there is one state level exam. It's called PG-CET. Okay, so they have two exams, GPAT और PG-CET. ओके, तो पूरे अगर इफ यू आर बात करें तो एक राज्य फॉर एग्जांपल अपने एक स्टेट में जितने भी 100 या 200 बच्चे हैं गुजरात के, फॉर एग्जांपल गुजरात की बात करूँ 200 बच्चे जीपेट क्वालिफाई हुए, तो व्हाट अबाउट अदर्स? तो उनके लिए एक पीजीसीएट एग्जाम्स होती है और उसके हिसाब से बाकी का एडमिशन होता है। पहले हम जीपेट जो जितने क्वालिफायर उनको एडमिशंस उनको जो भी कॉलेज चाहिए उसमें मिलता है, फिर पीजीसीएट में जो मेरिट आता है उसके हिसाब से एडमिशन होता है। लेकिन अगर आपका एम-फार्म करना है, then if you are qualified GPAT, then you can get admission in all institute in all over India. You can get admission in all over India's pharmacy institute. Okay, then some of the institute, like if you talk about NIPER, National Institute of Pharmaceutical Research, तो वहाँ पे कैसा जैसे अपने टेक्निकल में सोचे तो आईसीटी है, अगर जैसा अपने एमबीए में समझे आईआईएम है, इसलिए अपने वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फार्मेसी में नाइपर। तो जैसे 7 या 8 नाइपर है, वो नाइपर के एडमिशन चाहिए, तो द बेसिक क्वालिफिकेशन इज दैट यू हैव जीपैट क्वालिफाइड, देन एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर एंट्रेंस एग्जाम ऑफ नाइपर, आईसीटी और जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी। If you are not GPAT qualified, then you can't sit into NIPER or ICT Jamia Hamdard University entrance exam for M-Pharm or MSc, you can say that. Okay, so if you're qualified GPAT, then you can take admission into M-Pharm or you can take, you are qualified for entrance exam of NIPER ICT. So GPAT is one most important. If you talk about M-Pharm, yes, GPAT is important. And one of the most important, you can get 12,500 rupees stipend per month. So it is given by government. Okay, so this is the means importance we talk about regarding M-Pharm. ओके, आई थिंक ये सब जितने भी एडवांटेज है ऑल ओवर, ये जो भी मैंने बोला है अभी सब बच्चों को पता ही है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है? यहाँ से एम-फार्म खत्म नहीं होता पहले। ओके, जीपेट का इम्पोर्टेंस खत्म नहीं होता, अब दूसरा इम्पोर्टेंस। यस, इफ यू आर प्लानिंग फॉर पीएचडी, यस, इफ गोल आपको पता है कि मुझे एम-फार्म करके बाद पीएचडी करना है, then validity of GPAT score is 3 years. Then 2 years for your M-Pharm and 1 year is your PhD. What is the benefit of qualified GPAT? If you are GPAT qualified, then you don't require to appear any entrance test of PhD taken by university. यूनिवर्सिटी की कोई किसी भी एग्जाम जो पीएचडी के लिए आप डायरेक्टली एंटर हो जाओगे। आपको सिर्फ डायरेक्टली यू हैव टू गिव योर प्रेजेंटेशन and then if you are selected in your presentation, then you can start your PhD at your respective university. So it is very beneficial, means you do not have any type of entrance exams. और यहाँ पे एक और फायदा है, ऐसा होता है कि कई बार वैलिडिटी ऑफ जीपैट स्कोर 3 इयर्स है, समटाइम्स कई स्टूडेंट्स थर्ड ईयर फाइनल ईयर में जाके 8 सेमेस्टर में अगर उसकी फेल हो जाते हैं, कोई बैकलॉग आ जाती है, तो उसको 6 महीने उसकी बिगड़ जाते हैं। तो उस टाइम वो एम-फार्म में एडमिशन नहीं ले पाता है। लेकिन वैलिडिटी ऑफ जीपैट स्कोर 3 इयर्स है, तो उसके बाद जो उसका नेक्स्ट ईयर है,
तो वो भी उस साल अप्लाई करके वो एम-फार्म में एडमिशन ले सकता है। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर वी कैन से द वैलिडिटी ऑफ जीपीएट 3 इयर्स। तो वी कैन कई बच्चों को ऐसा पता नहीं है कि मेरा तो मैं तो फेल हो चुका हूँ, तो आई कांट गेट एडमिशन नेक्स्ट ईयर एंड यू कांट गेट अ स्टाइपेंड स्कॉलरशिप। यू कैन टेक एडमिशन, you will get admission and you will also get scholarship, yeah, you can say stipend, okay, from respective organization, okay. So it's very beneficial. So if you are GPET qualified and if you are planning for PhD, GPET is very important. And sometimes sounds like if you are sometimes if you fail, then it will also help you, okay. So this is regarding some PhD. And if you are okay, if you are planning for PhD after 2 years, but and then entrance exam, so you have to give entrance exams. And if you see paper of PhD entrance exam, completely like MCQ exam, similar like GPET. So if you have prepared GPET during your BPharm time, you can get easily, means you can easily cross that type of PhD entrance exams, because you are already GPET qualified and you are already prepared well for GPET. So it is very beneficial to our your PhD entrance exam also. Yes. This is the third scope of GPET. Sometimes students say that actually I don't have to do for M-Pharm, I don't go to for M-Pharm, मुझे M-Pharm नहीं करना है, मुझे कहाँ पे ले जाना है। अभी B-Pharm के बाद ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या गवर्नमेंट जॉब्स है, फार्मेसी रिलेटेड से, मुझे उसके लिए प्रिपरेशंस करनी है। तो आप सोचो, फार्मेसी के लिए प्रिपरेशन लेके आप कर रहे हो, तो फार्मेसी के जो क्वेश्चंस होंगे वो कहाँ से होंगे? B-Pharm से ही होंगे। So these are the some I have mentioned some entrance exams or some governments exams like junior pharmacies हमारे यहाँ पे 31,340 रुपीज़ वहाँ से सैलरी स्टार्ट होती है। इफ यू आर फूड सेफ्टी ऑफिसर सेफ्टी इंस्पेक्टर 39,000 रुपीज़ सैलरी हमारी स्टार्ट होती है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर मैं बात करें, और अगर उसकी क्वेश्चंस पेपर का भी जो आता है फॉर्मूला, तो उसमें क्लियरली मेंशन्स कि 90 क्वेश्चंस विल कम आउट फ्रॉम फार्मेसी एंड 60 क्वेश्चंस फ्रॉम अदर्स। अदर्स मीन जनरल। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर में सिमिलर पैटर्न होती है, 90 क्वेश्चन फॉर फार्मेसी और 60 क्वेश्चन अदर्स। इफ यू आर प्लानिंग फॉर डीआई, इफ यू आर प्लानिंग फॉर रेलवे फार्मेसिस्ट और मेनी अदर्स गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ऑफ रिलेटेड टू फार्मेसी, तो उसकी जितने भी पैटर्न हैं, जितने भी एमसीक्यू है, जितने भी क्वेश्चंस पैटर्न है, जो भी बेसिक है, वो जितने भी ऑफ फार्मेसी, वो कहाँ से आएँगे? सिमिलर लाइक जीपैट। अगर आप फाइनल ईयर से, अगर आप 5th ईयर से सॉरी 5th सेम से प्लानिंग कर रहे हो जीपेट, और आप जीपेट क्वालीफाई होते हो, देन इफ आप और आपके बीकॉम कंप्लीट होने के बाद अगर कोई गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम आती है, अगर आप फॉर्म भरते हो, देन यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। It will beneficial. GPAT exam will give you support. GPAT exam give you act as your backbone of your government exams, because almost 60 to 70 percentage of pharmacy questions will come out from GPAT. So अगर आप कोई भी अगर आप पीएचडी का गोल सोच रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट का भी सोच रहे हो कि मुझे गवर्नमेंट में जाना है, मुझे ऐसा कुछ अभी कोई आगे करना नहीं है, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आ रही है उसकी प्रिपरेशंस करनी है, वो सिमिलर लाइक जीपेट। जीपेट का जितना कोर्स है वही ही है। इसके लिए अगर आप क्या करते हो, पूरा टाइम 5th 6 7 8 अगर पूरा समय ड्यूरिंग आपने जो जितने भी स्टडी चल रही है उसके साथ अपना टाइम दे रहे हो, तो जब भी बीकॉम के बाद एग्ज़ाम आएगी, तो आप उसमें इज़िली अपीयर हो पाओगे। और ट्राई टू आप अगर अच्छा नसीब रहा और अच्छी मेहनत भी की, तो आप उसको क्रैक भी कर पाओगे। और आपको एक गाइडेंस भी पता है और आपको पता भी है कि अगर आपने जीपेट में प्रॉपर इम्पोर्टेंस दिया है, तो गवर्नमेंट जॉब में भी मेरे को इम्पोर्टेंस रहेगी। तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। कोई भी हो, रेलवे, फार्मेसी, अगर आप सिलेबस भी देखोगे, अगर कितने भी मटेरियल यू विल फाइंड इन योर इंटरनेट और एनीथिंग सिमिलर लाइक जीपेट। So it is very beneficial. So if you are planning for GPAT, you are also preparing for government jobs. Okay. The next importance.
पीबीसी एग्जाम्स। ओके, कई लोग मुझे ऐसा कहते हैं कि सर एक्चुअली आई एम प्लानिंग फॉर अब्रॉड, सो आई एम प्लानिंग फॉर अब्रॉड, सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आईएलटीएस एग्जाम्स और एनीथिंग एग्जाम्स। ओके, गुड, आई सेड गुड, बट एक्चुअली पहले IELTS is a just English language exam. Okay, you are preparing for language, not for any type of knowledge exam. Okay, means like GPAT is a knowledge exams, but IELTS is one of English language exams. Okay, so or many of our students which are from English medium, also they are preparing for IELTS. Okay, so if you are already English medium student, then also you are preparing for IELTS. Means if अगर आप फर्स्ट टू ट्वेल्थ स्टैंडर्ड देन बी फॉर्म 4 साल, टोटल 16 साल अगर आपने इंग्लिश मीडियम किया है, देन एंड देन यू आर टेकिंग कोचिंग फॉर IELTS or any English language exams for abroad, then how can you say that you can crack GPAT or any PVC exams within 1 year or 2 year or 2 months? It is very difficult. So if you're planning for abroad in PBC exam, it's a registered pharmacist. If you become registered, जैसे अपने यहाँ पे बीफार्म पास करते हैं तो हमको स्टेट फार्मेसी तो लाइसेंस दिया जाता है, रजिस्टर्ड फार्मेसी, जहाँ पे कोई एग्जाम देनी नहीं होती। लेकिन अगर आप अब्रॉड जाते हो, वहाँ को आप वहाँ से आपको रजिस्टर्ड फार्मेसी के लिए पीबीसी कैन ये स्पेशली मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पीबीसी एग्ज़ाम्स देनी होती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है। उसका कोर्स अगर हम देखें तो उसमें ज़्यादातर कोलोजी आता है, और कोलोजी की अगर हम एमसीक्यू देखें, वो सिमिलर वो को एमसीक्यूज़ वगैरह पैटर्न वगैरह देखें, तो वो अपने जीपेट में जो फार्माकोलॉजी आता है, उसमें क्लिनिकल जो आता है, वो सब होता है। तो सब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ अगर आप ट्राई करते हो, ऐसा नहीं बोल रहा तुम्हें आप स्पेशली आईएलटीएस के लिए आईएलटीएस की तैयार करो। साथ में जीपेट का अगर चल रहा है, तो उसके लिए भी उसमें अगर कोलोजी भी देखा करो, क्लिनिकल भी देखा करो कि अगर आप रजिस्टर फार्मेसी के एग्ज़ाम पीबीसी लेवल 1, 2 और 3 के लिए अगर देना पड़ेगा, क्योंकि अभी राइट नाउ इट्स बिकमिंग वेरी, वेरी टफ टू क्लियर पीबीसी एग्ज़ाम्स, तो वो बेनिफिशियल होगा। तब आपको अगर आप आईएलटीएस करके वहीं पे जाओगे, तब आपको वहाँ पे उतने उतने स्ट्रगल के साथ पढ़ना भी है और इसके लिए इसकी एक्स्ट्रा प्रिपरेशंस भी करनी है। तो उसके ज़्यादा अगर यहाँ पे जब हो, तब यहाँ पे उसके साथ पीबीसी एग्ज़ाम भी अगर स्टार्ट आप दे रहे हो, तो जीपेट का भी उसमें देखा करो कि उसमें जो कोलोजीज़ आता है, क्लिनिकल्स आता है, वो सब देखा करो, तो वो भी आपको बेनिफिशियल होगा। सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर अब्रॉड, जीपेट इज़ आल्सो हेल्प यू for registered pharmacist in Canada. Means it help you to clear PBC exams. ओके, मैंने कई लोगों को देखा है को जो लोग एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं, वो लोग जीपेट का मटेरियल मंगवाते हैं कोलोजी का। तो पीवीसी एग्जाम्स भी इम्पोर्टेंट है, तो अगर आप बाहर जा रहे हो तो भी उसमें जीपेट आता है। इफ यू आर प्लानिंग फॉर पीबीसी एंड ऑल्सो if you are planning for abroad, then try to study for GPAT. ओके, द नेक्स्ट इम्पोर्टेंस, ओके, मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे आफ्टर बीफॉर्म मुझे कुछ नहीं करना है। डिप्लोमा के बाद कुछ नहीं करना है, एमकॉम के डिप्लोमा के अब मुझे कुछ आगे नहीं पढ़ना है, बीफॉर्म के मुझे कुछ नहीं। मुझे क्या करना है? मुझे जॉब करनी है। अगर आपको जॉब करनी है, अगर आप एमकॉम के बाद भी कुछ एकेडमिक में भी प्लान कर रहे हो, एज़ अ प्रोफेसर कुछ भी क प्लान कर रहे हो, तो समटाइम्स अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे, दे विल नॉट आस्क यू शॉर्ट नोट ऑफ एक्स, वाई, ज़ेड। They will ask you one line question, similar like GPAT, means MCQ like whatever you are prepared for GPAT. Okay, can you give me types of tablet? Can you give me how much RPM of fibrillator? These are type of questions asked in interview. So it is already mentioned or already you can study in GPAT. मीन्स फार्मेसी जो आप जीपेट की प्रिपरेशंस कर रहे हो, उसमें बेसिक क्वेश्चंस जो आते हैं, वही एंट्रेंस एग्जाम जो इंडस्ट्री और एकेडमिक में जो आते हैं वो लेते हैं, उसमें एमसीक्यू जो प्रिपरेशन होती है वो उसकी ही होती है, वो जीपेट के क्वेश्चन के हिसाब से ही होती है।
अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, अगर कोई अच्छी बड़ी कंपनी है, बहुत लोग प्लेसमेंट आते हैं अलग-अलग कॉलेज में, तो वो एंट्रेंस लेते हैं। तो एंट्रेंस में वो लोग एमसीक्यू पूछते हैं, तो इन एमसीक्यू सिमिलर लाइक जीपेट, जीपेट के जो एमसीक्यू होते हैं, वही के लाइक उसमें थोड़े ईज़ी थोड़े रहेंगे, थोड़ा टफ ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन वो आपको क्लियर पाया करेंगे, आपको बेसिक फंडा क्लियर है कि नहीं? लेकिन ज़्यादातर लोग मग अप करते हैं, तो उससे वो क्या होता है कि वो लोग कई लोग एमसीक्यू क्लियर नहीं कर पाते, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते, तो उसको जॉब में भी दिक्कत आती है। तो अगर इफ यू आर प्लानिंग फॉर इंडस्ट्री जॉब, इफ यू आर प्लानिंग फॉर जॉब इन इंडस्ट्री और academic or anything else, then GPAT will also help you to clear that type of entrance test, also in crack for interview. How to? Means it is also help you to crack your interview, because almost 90% your interview related to pharmacy basic questions related to your BPharm, and BPharm or GPAT related to your complete syllabus of BPharm. So it is very beneficial. अगर आप जीपेट की प्रिपरेशंस कर रहे हो, तो उसके साथ जीपेट के साथ ऑलरेडी यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यू, प्लेसमेंट, और इफ यू आर प्लानिंग फॉर जॉब एक्सेट्रा। सो लास्ट मैंने फिर से बताया कि इफ यू आर प्लानिंग फॉर जीपेट, यू आर आल्सो प्लानिंग फॉर एमफार्म, यू आर प्लानिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, प्लानिंग फॉर पीएचडी, यू आर प्लानिंग फॉर जॉब, सब इफ यू आर प्लानिंग फॉर अब्रॉड, सब जगह जीपेट इम्पोर्टेंट है। अगर जीपेट कर रहे हो, जीपेट के लिए अच्छा सा कोई स्पेशली अलग है नहीं, जो आपने पढ़ा है उसका बेसिक फंडा अपने को क्लियर करना है। वही हम साथ में ही पढ़ रहे हैं। तो 5, इसीलिए मैंने बोला कि इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 5th सेमेस्टर, इफ यू आर गिविंग 2 years to GPAT, then whatever your goal, you will crack it, because you have done, or you are giving proper time for your basic creating yourself basic backbone, जो जीपेट है वो आप क्लियर कर रहे हो, तो आपको बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो दिस आर इम्पोर्टेंस रिगार्डिंग योर करियर एक्सेट्रा, नथिंग। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं अभी जो दिखाने जा रहा हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसकी तुलना हम किसी से कंपेयर ही नहीं कर सकते। जीपेट अगर आप क्वालिफाई होते हो, इसकी इम्पोर्टेंस जो मैं अभी इसके बाद जो दिखाना, आप किसी के साथ इसके साथ कंपैरिज़न नहीं कर पा रहे हो, वो है यस, सैटिस्फैक्शंस। इफ यू आर जीपेट क्वालिफाइड, देन इफ यू आर सैटिस्फाइड, तो जितने अपने आप को आई फील प्राउड, तो आप कितना प्राउड करोगे? आप कितना प्राउड होगा अपने आप पे? आपको आपकी फैमिली कितना प्राउड करेगी? और फैमिली, कॉलेजेस, फ्रेंड सर्कल्स, आपके ब्रोशर्स में आपका फ़ोटो आएगा, वेबसाइट्स पे आएँगे, कई लोग अपने सोशल मीडिया में लोग शेयर करते हैं, मेरे कॉलेजेस वगैरह शेयर करते हैं, ये सब भी आता है। तो इट मीन्स लाइक, तो अगर आपके कॉलेज का 100 सीट्स है, उसमें से अगर 5 बच्चे भी या 3 बच्चे भी क्वालीफाई होते, तो यू आर डिफरेंट फ्रॉम दैट 100 स्टूडेंट्स, बिकॉज़ यू आर क्वालिफाइड जीपेट, यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम। सो यू आर एक्चुअली, आप बोल सकते हो कि आपको एक अलग सी फील होगी, आप प्राउड फील करोगे अपने आप पे कि यस, मैंने जीपेट क्वालिफाई की, मैं सब बच्चे से अलग हूँ, और जितने भी आगे के एडवांटेजेस है वो सब मैं अब मेरे को मिलेंगे। और सबसे पापा-मम्मी को भी अच्छा लगेगा, फैमिली को भी अच्छा लगेगा, और कई लोग, जितने लोग होते हैं जिसको आगे पढ़ने के लिए समटाइम्स फाइनेंशियल बर्डन्स होते हैं, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। तो सैटिस्फैक्शन से बड़ा आई थिंक एनीथिंग इज़ नॉट इज़ इन दिस वर्ल्ड, मैं जितना चाहता हूँ। अगर इफ यू आर सैटिस्फाइड, देन इसके हिसाब से कोई भी बेनिफिट्स आपके सामने बड़े नहीं है। बिकॉज़ इफ यू आर सैटिस्फाइड, इट्स गुड। And you can feel proud, your father, your mother, your family, your teacher, your principal, your organizations, your coaching institutes, all because feeling proud on you. So I think this is the most important compared to other benefits. So if you're planning for GPAT, you can get this type of much importance. I can, these are actually मेरे हिसाब से इतने important, ये बहुत है कि अगर you are planning for GPAT from 5th semester, and if you are qualified, then it's good. So these are the benefits, or if you can say the advantages of GPAT. Okay. So now move on. So GPAT के लिए थोड़ी टिप्स, लाइक आई विल शेयर विथ यू सम टिप्स। सबको पता है कि
Actually, there are 46 to 54 pages of syllabus of GPET, or 44 pages to 54 means 45 45 से 54 पेजेस, इतना लंबा सिलेबस है और 1.5 साल में करना कैसे? लेकिन उतने से सब नहीं करना है पहले तो। उसमें से जितना भी लंबा सिलेबस है, उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं, वो आई हैव मेंशन हियर। और उसमें से अगर हम सिलेबस बनाने जाएँ, तो 4 से या 5 पेज में ही वो सिलेबस बन जाता है, जो एक्चुअली जीपेट के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम जीपेट की बात करें, नाउ लास्ट 2 ईयर्स से दे आर मेंशनिंग कि शूटिक्स में इतने क्वेश्चन्स आएँगे, कॉग्निशन में इतने होंगे, कोलॉजी के इतने होंगे, एनालिसिस केमिस्ट्री के उतने होंगे। सो आपको पता चले, अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड, आपको शूटिक्स अच्छा लगता है, तो आप शूटिक्स में जितने भी क्वेश्चन्स आएँगे, वो ट्राई करो कि आप उसमें अच्छा सा अच्छा स्कोर करो। तो आपको जीपेट क्वालीफाई होने के चांस बढ़ जाएँगे। अगर आप केमिस्ट्री में ज़्यादा है, तो अगर उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएँगे, वो आपको पता चल जाएगा। तो आपको पता चले कि मुझे केमिस्ट्री अच्छा आता है, तो आई कैन स्कोर मैक्सिमम इंटू केमिस्ट्री पोर्शन्स। तो वो भी आपको एक बेनिफिशियल रहेगा कि यस, मुझे ज़्यादा करना है, मुझे केमिस्ट्री अच्छा लगता है, तो मैं स्कोर करूँ अगर उसमें से। तो आपको पता चलेगा कि पहले क्या होता है, पहले ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता, पैटर्न नहीं होती, कितने शूटिंग्स के आएँगे, कितने केमिस्ट्री के आएँगे, कितने कोलोजी। अब दे आर ऑलरेडी बाइफरगेट कर दिया है कि इतने शूटिंग्स के आएँगे, इतने केमिस्ट आएँगे, तो इट इज़ एज़ पर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। तो आप उसके हिसाब से भी प्रिपरेशंस कर सकते हो। ओके? सो इफ यू टॉक प्रिपरेशन अबाउट फार्मास्यूटिक्स, तो आपको बेसिक आना चाहिए। सब कई लोग बेसिक प्रिपरेशंस नहीं करते। और या इफ यू टॉक अबाउट बेसिक, व्हाट इज़ बेसिक? यूनिट ऑपरेशन, ओके? यूनिट ऑपरेशंस, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। अपने कभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशंस, ये लगता है नहीं कि ये तो आएगा। लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन फिजिकल फार्मेसी उसमें से आते हैं। तो वो हमको छोड़ना नहीं चाहिए, वो हमको उसको भी हमको एज़ अ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू हमको उसके साथ अपने लेना चाहिए। ज्यूरी ज्यूरी बहुत ही शॉर्ट है, उसमें बहुत लंबा है ही नहीं। ज्यूरी अपने को करना है कि माइक्रो में भी सब माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, अगर ज्यूरी की बात करें तो अपने शेड्यूल्स प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर्म नंबर वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं, ईयर्स, एक्ट कब हुआ, ये सब, और मेंबर्स कितने होते हैं, इतना ही ज़्यादातर जूरी में आता है। अगर इतने आपने अच्छी तरह से कर लिया, देन जूरी इज़ ओके फॉर यू। देन माइक्रो मैक्सिमम वैक्सीन रिलेटेड्स आते हैं, माइक्रो के मैप रिलेटेड्स आते हैं, और और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कौन-कौन से हैं, कहाँ पे कौन से डिजीज़ में होते हैं, वगैरह ज़्यादातर माइक्रोज़ में वो डीएनए सब थोड़े आते हैं। टैबलेट कैप्सूल ज़्यादातर लोग जब उसके भी क्वेश्चन्स आते हैं, लेकिन ये साल नहीं और अगले साल टैबलेट का एक भी क्वेश्चन्स पेपर में नहीं आया था। टैबलेट का एक भी क्वेश्चन नहीं था। फार्मास्यूटिक्स में था, उसके हम 25 या 30 पे क्वेश्चन्स पूछे थे, लेकिन उसमें टैबलेट का नो सिंगल क्वेश्चन उसमें नहीं था। होते हैं। सो ऐसा नहीं होता कि अगर आप सब इम्पोर्टेंट आप कर रहे हो, समटाइम्स ऐसा हो कि एक भी क्वेश्चन उसमें से आ भी नहीं सकता। जी, लाइक कैप्सूल क्या आए थे ज़्यादा? So these are the most important points or topics if you have prepared basic, jury, micro, tablet capsules, okay, aerosols, they are widely asked in GPET. If you talk about कोलोजी बहुत बड़ा है, कोलोजी, लेकिन कॉमन क्या करना है? अपने कितने भी किसी भी हो उसमें क्लासिफिकेशन जो आते हैं, जितने भी क्लासिफिकेशन हो, वो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस, साइड इफ़ेक्ट और यूज़, इतना तो आप नॉर्मली भी आप इतना करो, तो भी कोलोजी आपका हो सकता है। आपको क्लासिफिकेशंस, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, साइड इफ़ेक्ट, यूज़ेस, आप कोलोजी का इतना भी करो, तो भी कोलोजी आप कर सकते हो। इतना गया तो अभी 50 टू 60% कोलोजी आपका हो गया। तो वो भी कोलोजी में ये इम्पोर्टेंट है कि बेसिक क्या होना चाहिए, आपको क्या आना चाहिए कोलोजी में से, आपको क्लासिफिकेशन, मैकेनिज़्म ऑफ साइड इफ़ेक्ट, यूज़ेस आने चाहिए। कॉग्नोसी, इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर कॉग्नोसी, कॉग्नोसी को लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन कॉग्नोसी के 5 क्वेश्चन भी जो आ जाए, तो एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं, फॉर 5 इंटू 4 20 मार्क्स के हो जाते हैं, और लोग उसको छोड़ देते हैं। और उसको क्या कहते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन जो कोकाटे होती है उसके पीछे सब दिया हुआ है। बस उतना भी अगर आप करो, जितने भी टेस्ट उसमें मेंशन किए, और एक फैमिली अगर सब नोट्स भी, अगर शॉर्ट नोट अभी भी अवेलेबल होती है, टेबल्स बहुत अवेलेबल है राइट नाउ।
अगर वो करो तो भी बहुत अच्छा है। बायोलॉजिकल नेम, फैमिली वगैरह। वेरियस टेस्ट, जितने भी केमिकल टेस्ट आती है, क्लासिफिकेशन फैमिली नेम मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉर एग्जांपल स्टोमाटा का है कि इसमें किस टाइप के स्टोमाटा होते हैं। अगर वो टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादातर कॉग्नोसिकी में पूछे जाते हैं। इफ यू टॉक अबाउट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर स्पेसिफिक ड्रग, फॉर एग्जांपल कैफ़ीन जो है, उसमें मुरेक्साइड टेस्ट होती है। कैफ़ीन अगर होती है, तो उसमें कौन से टेस्ट होती है, तो यू कैन टेस्ट इट्स अ मुरेक्साइड टेस्ट। और मुरेक्साइड टेस्ट होती है, मुरेक्साइड वो एक्चुअली प्यूरिन डेरिवेटिव के लिए होती है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि कैफ़ीन के लिए कैफ़ीन प्यूरिन डेरिवेटिव है और मुरेक्साइड उसके लिए यूज़ होती है। अगर ये भी अपने को पता हो जाए स्पेसिफिक टेस्ट फॉर स्पेसिफिक ड्रग, देन जो अगर 4 या 5 क्वेश्चन अगर आ गए, तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू क्रैक जीपीएट। ओके, तो कॉग्नोसी में अगर हम कॉन्सेप्ट है, हमको बताना चाहिए कि टेस्ट कौन-सी है, कौन-सी टेस्ट वो कहाँ से पढ़ने का कोकाटे के लास्ट में जो सब सब टेस्ट मेंशन किए वो टेस्ट, सम क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली नेम और आपको स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग लाइक स्टोमाटा टाइप एक्सेट्रा एंड देन स्पेसिफिक टेस्ट फॉर स्पेसिफिक ड्रग। केमिस्ट्री, जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, सबको डिफिकल्ट लगता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बहुत टाइप की बायोकेमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री, बहुत टाइप के केमिस्ट्री होती है। लेकिन मेरा ख्याल है इतना कि अगर उसमें से अगर एक केमिस्ट्री भी अगर आप अच्छी तरह से ले लो, छोटा-सा केमिस्ट्री उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें सिर्फ़ 2 ही इम्पोर्टेंट है। उसमें नेम रिएक्शन है और नेमो बेसिक रिंग है। नेम ऑफ रिएक्शन, उसमें टोटल 13 नेम ऑफ रिएक्शन मेंशन है। अगर आप 2 साल में वो 13 नेम ऑफ रिएक्शन भी कर लो, तो आई डेफिनिटली से आई कैन से यू कि आप 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको ईज़िली आप दे पाओगे। 8 मार्क आप 8 मार्क्स आप ले ही पाओगे, आ ही जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एग्ज़ाम्पल दिया Clemens reduction is a chemical reactions described as a reduction of ketones to alkanes using zinc amalgam और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो ना जिसमें मैंने इसको बोल्ड किया है, वो एक्चुअली एमसीक्यू में ऑप्शंस रहते हैं। ये कौन-सी रिएक्शंस है, इसमें मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन कौन-सी है, उसमें कौन से एग्ज़ाम्स एजेंट्स यूज़ होते हैं, इसकी प्रेज़ेंस में ये प्रोसेस होती है, लाइक जिंक अमाल्गम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। कौन-सी प्रोसेस है? रिडक्शन प्रोसेस। कौन-सी सिंथेसिस रिएक्शन कौन-सी नेम रिएक्शन है? क्लेमेंस रिडक्शन। सो ये अगर आप देयर आर 30 name reactions in OC. If you have prepared only 13, then it is okay. So you can clear almost 2 or 3 questions. I can say 1 or 2, maximum 2 or 3 questions. And then another is components ring. Components, small components ring. If you are prepared in OC, then yes, maximum 2, 3, 4, you can get easily cleared. Okay. So these are the some tips regarding basic about GPAT. So GPAT में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? If you are planning for GPAT and अगर प्रिपरेशंस कर रहे हो, तो सबको ऐसा होता है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ क्या? तो पहले तो ऐसा है कि अगर आप 5th सेमेस्टर में हो और इफ यू आर प्लानिंग फॉर जीपीएट, पहले वो सब्जेक्ट हाथ में लो जो आपको ज़्यादातर पसंद है। अगर आपको सूटिक्स पसंद है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम सूटिक्स, बिकॉज़ अगर आप केमिस्ट्री आपको शायद आपको पसंद ही नहीं है, तो आप केमिस्ट्री के लिए स्टार्ट करोगे तो आपका माइंड आपको इसको इग्नोर करेगा और आज जीपेट आप स्टार्टिंग में ही छोड़ दोगे। तो पहले क्या स्टार्ट करना चाहिए कि जो आपको इंटरेस्टेड जितने भी सब्जेक्ट है वो लेके स्टार्ट कीजिए। और मैं वही भी बोल रहा हूँ, ज़्यादातर आउटसाइड सब लोग कोचिंग भी कर रहे हैं। तो कोचिंग भी करना चाहिए। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि कोचिंग नहीं करना है। इफ यू आर कॉन्फिडेंस इन योर कि मैं खुद मैं है कि मैं खुद से प्रिपेयर कर लूँगा, तो गुड। अदरवाइज़ कोचिंग करोगे, अगर किसी के पास सीखोगे तो एक अच्छा रहेगा क्योंकि वो आपको सिखाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे काम करना है, कैसे इसका टिप्स एंड ट्रिक आपको दिखाएँगे तो वो आपको बेनिफिशियल रहेगा। तो उससे अगर आपका स्कोर 200 आता है, तो वो कोई अपने को सिखाएगा तो उसका आपका स्कोर आने के चांसेस है 100 के अंदर। 100 है तो 15 टॉप 50 में आओगे। लेकिन कुछ आपको बेनिफिशियल रहेगा ही रहेगा। ओके? तो दीज़ आर द सम टिप्स रिगार्डिंग जीपीएट। नेक्स्ट
एंड यस, सब लोग प्रिपरेशंस को करते हैं, लेकिन 5th सेम से प्रिपरेशंस करते हैं, लेकिन इट्स बस पढ़े जाते हैं, पढ़े जाते हैं, पढ़े जाते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सबसे ज़्यादा 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, देखिए रिविज़न इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिकॉज़ जितना भी आप पढ़ रहे हो, जितने भी ड्यूरिंग जीपेट की प्रिपरेशंस कर रहे हो ड्यूरिंग जीपेट, उसका उसके साथ उसका रिवीजन भी करो। 2 वीक में आपने जो पढ़ा, 1 दिन लेके वो सब पढ़ लो, आपने लास्ट में क्या पढ़ा। अगर आप रिवीजन प्रॉपर नहीं करोगे, आपने नहीं किया, तो वो उसमें आपकी जो जितने वो आपको चांस होंगे कि वो आप रह जाएँगे, आपको भूल जाने के चांसेस ज़्यादा रह जाएँगे, आपको याद नहीं रहेगा। तो रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। लोग पढ़ते हैं। दूसरे लोग क्या करते हैं, दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर जितना भी पढ़ें आप एमसीक्यू सॉल्व करें। जितने भी एमसीक्यू आपके हाथ में दिखे, आपको जहाँ भी एमसीक्यू दिखे, सॉल्व करें। जितने भी 2 साल में जितने भी 5,000, 6,000, 10,000 जितने भी एमसीक्यू आप सॉल्व करना चाहते हो, सॉल्व करो। उतने में से कई एमसीक्यू आपके जीपीट के एग्ज़ाम में 2, 4, 5, 6 आ ही जाएँगे। लेकिन 2 इम्पोर्टेंट मैंने क्या बोला? रिवीज़न मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसके साथ एमसीक्यू भी सॉल्व करना है। अगर एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो मैंने प्रिपेयर किया उसके एग्ज़ाम नहीं दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। आपको कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन उसको एमसीक्यू जितने सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, इसमें मुझे पता था लेकिन मुझे आया नहीं और ये टॉपिक है, तो उसमें 3 टॉपिक क्यों नहीं आए? अगर उसका सही आंसर ए है, तो बी, सी, डी क्यों नहीं आ रहे? तो वो भी आपको पता चलेगा। तो रिवीज़न और एमसीक्यू सॉल्व भी करना है। कई लोग बोलते हैं रिवीज़न कैसे करें? तो उसके लिए रिवीज़न जब भी करो, उसके लिए हमारे यहाँ एक बोलते हैं उसको बोलते हैं एलएमआर। उसको बोलते हैं एलएमआर। हम बनाते एक बुक बनाते हैं जिसको बोलते हैं एलएमआर बोलते हैं, लास्ट मिनट रिवीजन। तो लास्ट मिनट रिवीजन की एक बुक बनानी होती है। लास्ट रिवीजन बुक में क्या होता है कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो कई एमसीक्यू जितने भी आप सॉल्व कर रहे हो, लेकिन वो आपको पता है ही नहीं। आपने फर्स्ट टाइम सुने हैं, आपने उसमें गलत आंसर दिए, आप भूल जाते हो। ऐसे और जितने भी हो, उसको वन लाइनर बना के वो नोटबुक है जो आपकी लास्ट मिनट रिवीजन बुक है, उसमें लिखने का है, उसमें लिख दो। तो जब भी आप रिवीजन के लिए बैठो, वो उसको एलएमआर भी साथ में लेके बैठो। क्योंकि जो आपको आता है, जो आपको याद है, वो तो याद है ही। लेकिन जब आपने याद करके एग्ज़ाम देने बैठे और एमसीक्यू सॉल्व करने बैठे, तब वो आपको याद नहीं आया और दूसरा आपको याद रहा नहीं और आपको आता नहीं था। वो ऑलरेडी यू हैव मेंशन इन एलएमआर। देन वो 1 बार आपने एलएमआर देखी, 2 बार एलएमआर देखी, 5 बार देखी, 6 बार देखी, 10 बार देखी। 2 साल में जितनी बार देखते रहोगे तो वो जितनी बार देखोगे तो आपके माइंड में उसको फ़ोटोकॉपी छप जाएगी। तो वो एमसीक्यू आपके माइंड में छप जाएँगे। तो लास्ट मिनट रिवीजन में क्या होगा, वो बुक जो भी जितने भी लिखा है वो आपके माइंड में आ जाएँगे, तो आप इज़िली आप प्रेज़ेंट कर पाओगे और आपको अच्छे से आपको सब याद भी रह जाएगा। ओके? सो फाइनली आपने फिर से बोला रिवीजन करने का है और रिवीजन भी करना है, उसके साथ आपको एलएमआर लास्ट मिनट रिवीजन भी बुक बनानी है और एमसीक्यू भी आपको उसके साथ सॉल्व करने हैं। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ पढ़ो, कोचिंग ही करो, बस आपने बीफार्म में जो पढ़ा है वो नहीं, आपको बेसिक फंडा क्लियर करने हैं, बेसिक फंडा। सब लोग करते हैं लेकिन टैबलेट करते हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ टैबलेट होती है, कौन से इंग्रीडिएंट्स आते हैं, ग्लाइडिन कौन से है, टाल्क क्या है? या ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन पूछते हैं, टाल्क क्या है? उसका कितने परसेंटेज और सर्फेक्टेंट मैक्सिमम हाउ के 2.5% यूज़ करते हैं, तो आपको रेंज पता होनी चाहिए, वगैरह-वगैरह सब आता है। तो ये सब आपको अगर आपसे वो याद नहीं रही है, यू हैव टू नोट इट डाउन इन योर एलएमआर। जब आप रिवीज़न करना बैठो 1 वीक या 2 वीक आप बैठो, तो वो पूरा पहले से ही देखने का। अब दूसरी बार बैठो, अगर आपने पहले रिवीज़न एलएमआर बनाई 5 पेजेज़ हुए, तो वो पूरा पढ़ लिया, फिर दूसरे वीक के बाद उसके 10 पेजेज़ हो गए, तो आपको पहले से और फर्स्ट से 10 पेजेज़ आपको पढ़ने हैं फिर से रिवीज़न टाइम।
जितना भी आप पढ़ते रहोगे, आपको एक बेनिफिशियल आपको रहता जाएगा। और वो लास्ट मिनट रिवीजन बुकलेट वो है, जो आपको याद नहीं रहती है। वो क्वेश्चंस ऑलरेडी मेंशन आपने उसमें बुक में किए हैं। अगर उसमें से आपने बहुत बार देखे और आ गए, तो आपको अच्छा रहेगा और आपके 2-3 जितने भी क्वेश्चंस में आ गए, आपको हेल्पफुल रहेगा। ओके? सो नेक्स्ट मटेरियल। ये लोग बोलते हैं कि कौन-सी बुक एक्चुअली रिकमेंडेड है, कौन-सी बुक पढ़नी चाहिए? जीपेट की कोई बुक्स आप इफ यू फाइंड इन इंटरनेट लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ मटेरियल्स। अभी इतनी ऐप अवेलेबल्स है, इतना मटेरियल्स अवेलेबल है। आप देखो बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। देयर आर नंबर ऑफ यू कैन से अनलिमिटेड मटेरियल रिगार्डिंग जीपेट। लेकिन इफ यू फाउंड वन टॉपिक इन डिफरेंट नोट्स, देयर आर मेनी पॉइंट्स आर मिसिंग। सो क्या होता है कि अगर आप एक एक नोट्स ली, तो उसमें कौन से होते हैं, कोई पॉइंट मिस कर देते हैं क्योंकि मैंने बनाई, मैंने अपने हिसाब से बनाई। अगर और कोई बनाता है, वो अपने हिसाब से बनाता है। नोट्स अलग-अलग इतने मटेरियल्स होते हैं, तो समटाइम्स बच्चे कन्फ्यूज़ होता है। और क्या होता है कि वो कोचिंग में देते हैं वो मटेरियल्स, अगर वो कोई क्लास में कोई उन्होंने ऑनलाइन कोई मटेरियल डाउनलोड किया, वही मटेरियल्स अगर किसी ने बोला ये पढ़ो, ये मटेरियल्स। लेकिन ज़्यादातर पूरे इंडिया में जितने भी सबसे ज़्यादा जो बुक्स का लिस्ट है, ये जो मैंने अभी आप देख रहे हो, दीज़ आर द बुक्स recommended for GPAT preparations and top 5 books. These are the top 5 books GPAT accompanied by इनामदार। इनामदार जो बुक होती है, उसमें कंप्लीटली एमसीक्यू दिए हुए हैं। लेकिन उसको सॉल्व क्या करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है कि उसको फॉर एग्ज़ाम्पल 1 एमसीक्यू देखा, तो सॉल्व किया, चलो मुझे आ गया। नहीं, वो एमसीक्यू का टॉपिक कौन-सा है, वो आपको पढ़ना है। वो एमसीक्यू कौन से टॉपिक से लिया हुआ है, वो आपको पढ़ना है। अगर वो हिसाब से अगर आप क्लियर करोगे, वो हिसाब से आप पढ़ोगे, देन आई डेफिनिटली आई बेट यू, you will become qualified GPAT ranker. Okay, these are number of others GPAT books: GPAT and GATE and Pharmacy by Vidyasagar, GPAT by Mohammad Ali, Pharmacy Quiz GPAT by Samba Reddy, The Pearson Guide to GPAT by उमंग ऐसा। ये जो बुक है, जो लास्ट वाली पियर्सन वाली जो बुक, उसमें कितने बार नोट्स भी दी हुई है। ये इसमें नोट्स है, उसमें नाइपर और बीफार्म के पेपर भी ऑलरेडी लास्ट ईयर जीपेट के पेपर्स भी ऑलरेडी मेंशन है। तो यस, आपको वहाँ से आपके जीपेट के पेपर चाहिए, नाइपर के चाहिए और कुछ नोट्स भी चाहिए, तो यू कैन गेट फ्रॉम दिस पियर्सन गाइड टू जीपेट बुक। ओके, तो दिस आर द टॉप 5 बुक्स। मैं नहीं कर रहा हूँ कि ये टॉप 5 है, लेकिन जनरली ये सब ज़्यादातर ये मोस्ट सेलिंग बुक्स है और ज़्यादातर यही लोग लेते हैं। अदर भी बुक्स है लाइक फार्मा स्टॉक है या विद्यासागर है, संजार आलम की एक जीपेट क्रैकर आती है, बेट एंड गेट वाइडली यूज, लेकिन बेटेड जीपेट है, सम जो गेट भी जो बुक आती है, उसमें ज़्यादातर एमसीक्यू रॉन्ग भी उसके मैंने देखे हुए हैं। सिनॉप्सिस व जीपेट बाय मुनीश आहूजा। तो दिस आर द लिस्ट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस माय पीपीटी एंड आपको पता चले कि कौन सी बुक मुझे रिकमेंड है, कि आपको जो भी अच्छी लगे या यू कैन रिफर। ओके, so this is the books recommended for GPAT preparations. Okay. तो आपने अच्छी तरह से अगर मैंने समझा, आपका गोल मैंने किया, 5th सेम से चालू किया, स्टार्ट किया, फिर आपने जीपेट एनटीएन हैंडल किया, आपने जीपेट के लिए प्रिपरेशन इम्पोर्टेंस समझ के समझे, आपने स्टार्ट कर लिया, फिर आपने जीपेट के एग्जाम के लिए जो भी पढ़े, सब टिप्स टिप्स वगैरह देख लिए। ओके, अब जब आप जीपेट के एग्जाम्स जब दे रहे हो, क्या क्या आपको इतना थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आप जीपेट के एग्जाम देने बैठो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जितने भी अगर 125 क्वेश्चन है, पहले शांत होके पूरे क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लो। अगर आपको जितने भी आते हैं, अगर आपको 2 भी आए तो भी अच्छा है, 20 भी आए तो भी अच्छा है, 50 आए तो भी अच्छा है। लेकिन वो देख के आपको हर्डल्स आपके आपको कुछ हेजिटेट होना है नहीं। आपको सिर्फ़ देख लेने के, चलो अच्छे कौन-सा आंसर आंसर होगा। विज़िट फॉलो एंड उसमें से क्वेश्चन्स पहले फाइंड आउट करो कि जिसमें आपको 110% आप बोलो इसका आंसर यही है। तो फर्स्ट 100% कॉन्फिडेंस आपको जितने भी क्वेश्चन आपको आए, उसको टिक कर दो, उसके आंसर दे दो।
ओके। तो जब भी आप फर्स्ट टू 125 जा रहे हो, अगर आपके 5 नंबर 5th नंबर के क्वेश्चन पे आए, उसको लगे कि या यस दिस इज मुझे आता है, तो ये इसका आंसर यही है, टिक कर दो। अगर अगर आप 6 नंबर पे आए और आपको लगे कि ये आंसर का क्वेश्चन मुझे नहीं पता है, पता तो है लेकिन आई एम कंफ्यूज्ड, तो उस सोचने के लिए आपको टाइम भी करना नहीं है। उसके लिए आपको क्या है, उस टाइम 6 नंबर को आपको फ्लैग कर देना है, मीन्स मार्क फॉर रिव्यू। पहले फ्लैग का ऑप्शन आता था, उसको भी नाम दे दिया है मार्क फॉर रिव्यू। तो आपको क्या करना है, उसको रिव्यू कर देना है। क्या रिव्यू क्यों? कि अगर अगर आप 7, 8, 9 सब पढ़ कर रहेंगे, आपको पता होना चाहिए कि मुझे 6 नंबर का क्वेश्चन था, वो मुझे 50-50 थोड़ा लगा था, मैं बाद में आंसर दूँगा। ओके? देन 50-50 है, उसको क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई कीजिए, जो आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है। तो अगर वो करेंगे, तो फिर अगर आपने पहले 100 वाले सब कर दिए, फिर 50-50 वाले कर दिए। लेकिन 55 जितने भी आप मार्क फॉर रिव्यू करो, उसको लेकिन सब मत करो। जितने भी आप 50-50 से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए कि यस, ये 50 नहीं, इसमें आपको लग सकती है, इसमें आप तुक्का लगाइए, यस, ये हो सकता है, आपको 60-80% आप श्योर हो, देने दो। लेकिन बिलो चांसेस 50 से आप उसके लिए मत दो। क्योंकि उसको आपको -1 आपको मिलेगा और ड्यूरिंग जितने भी आप रखो, सब लोग टाइम भूल जाते हैं। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिमेंबर टाइम ड्यूरिंग एग्ज़ाम बिकॉज़ 3 आवर्स की एग्ज़ाम्स होती है, तो वो 3 आवर्स में ही आपको सब करना होता है। कई लोग का एक क्वेश्चन्स आता है मुझे कि सर ये तो ऑनलाइन से एग्ज़ाम है, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है, मैं क्या करूँ? अगर जिप ऑनलाइन एग्ज़ाम में अगर कुछ हिसाब से यानी कंप्यूटर बिगड़ गया, इंटरनेट कनेक्शन चला गया, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो मेरा क्वेश्चन तो मेरी एग्ज़ाम वहीं से ब बंद हो गई तो? फिर मेरे को क्या होगा? तो मेरे 3 घंटे तो मैं आपको बता दूँ, जहाँ पे अगर आप एग्ज़ाम देने बैठे हो, अगर आप आपने 50 क्वेश्चन्स ऑलरेडी आंसर दे दिया है और कुछ भी रीज़न से आपकी एग्ज़ाम रुकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर बंद हो गया, नेट चला गया, लाइट चली गई और एनी रीज़न्स, जब आप फिर से लॉगिन होगे, आप वहीं से और उतने समय से ही लॉगिन हो पाओगे, उतने समय से ही आपका लॉगिन होगा। यानी अगर 2 घंटे के बाद आप आधा घंटे बैठे रहे हो कुछ तो आपको आधा घंटा ऑटोमेटिकली आप पे ऐड होता ही रहेगा। मीन जहाँ से आप स्टॉप हो गए, वहीं से आपका शुरुआत भी होगी। इट्स वेरी गुड, ओके? तो आपके लिए वो भी अच्छा ही है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा है, वो एकदम स्मूथली कंडक्ट होती है, तो उसके कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स आपको याद रखने का है, कि टाइम याद रखने का है और कोई टेंशन लेने का नहीं कि मुझे खत्म हो जाए जल्दी, ओके? नेक्स्ट, दिस इज़ द स्क्रीन। नेशनल टेस्टिंग एग्ज़ाम की जो स्क्रीन्स होती है, यहाँ पे जो कैंडिडेट नेम आपका यहाँ पे दिखाई दिया जाएगा। स यहाँ पे जो सब्जेक्ट है रिमेनिंग टाइम्स जितना है, यहाँ पे ही दिखाई दिया जाएगा, ओके? और जो आपका पेपर का जो वो आपको चेंज पेपर लैंग्वेज अगर करते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो और आपको वन स्क्रीन पे आपको एक ही क्वेश्चन आएगा मीन्स 125 क्वेश्चन है तो आपको नेक्स्ट करके सबमिट करके 125 करके आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे बढ़ यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है देखो कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है अगर इफ यू ग्रीन अगर हो जाता है तो उसका मीनिंग ये है कि उसका आंसर आपने दे दिया है अगर ये ग्रेइश टाइप का है मीन्स यू आर नॉट ए विजिटेड अगर रेड है तो लेकिन यू आर विजिटेड बट नॉट आंसर्ड ये वायलेट कलर का है तो इफ यू वायलेट मार्क फॉर रिव्यू लेकिन वायलेट में ये ग्रीन ऑप्शन आता है आंसर्ड फॉर मार्क फॉर विल बी कंसिडर फॉर इवैल्यूएशंस ऐसा होता है कि मार्क फॉर रिव्यू आता है लेकिन अगर मार्क फॉर रिव्यू और आप उसमें आंसर दे देते हो तो कंसिडर फॉर इवैल्यूएशंस अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है लेकिन उसमें आंसर नहीं दिया है, तो उसका वो कैलकुलेट नहीं होगा, ओके? तो ये आपको पता होना चाहिए। जब से हम पहले से 2, 3, 4 आगे बढ़ते रहते हैं, अगर आप लोग 6 में मुझे नहीं आता है, तो आप मार्क फॉर रिव्यू कर दो। फिर 7, 8 आगे बढ़ो, फिर 10th में नहीं आता, तो मार्क फॉर रिव्यू कर दो। 10, 11, 12 फिर करो, फिर खत्म होके फिर जितने भी 125 क्वेश्चन आप खत्म हो जाए, फिर आपको जितने भी आपने मार्क फॉर रिव्यू किए, उसको क्लिक करके आंसर देना है। सेव नेक्स्ट, सेव मार्क फॉर रिव्यू, क्लियर रिस्पॉन्स अगर आपको ए देना था और गलती से आपका बी हो गया, तो आपको क्लियर रिस्पॉन्स करेंगे तो वो ए चला चलेगा, फिर वो आप वहाँ से फिर चेक करेंगे, ओके? फिर ये सबमिट करना है।
ओके, तो ये सिंपल स्क्रीन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑलमोस्ट जितने भी राइट नाउ ऐप जितने भी मार्केट्स में हैं, ओके, ये सब जितने भी सब अब ऐप मार्केट में हैं और जितने भी लोग अभी राइट नाउ एग्ज़ाम दे रहे हैं, सिमिलर फॉलोइंग दिस पैटर्न्स। सो ये अपने जो आपको इस एनटीए की प्रिपरेशन ऑलरेडी हो जाएगी। जब जैसे भी आप कंप्यूटर पे बैठो, तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा। यू कांट मीन्स आपको ईज़िली रहेगा, ये आपको पता है, बस आपको सिर्फ़ अच्छी तरह से सोच समझ के आपको जीपीएट की एग्ज़ाम देनी है। तो आपको ये भी तो मैंने इस कंप्लीटली ये सेमिनार में क्या कन्वर्ट किया, क्या इसको इंक्लूड किया कि जीपीएट क्यों देनी चाहिए, जीपीएट कैसे देनी चाहिए, जीपीएट क्यों देनी चाहिए और जीपीएट दोगे तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए और उसकी एग्ज़ाम में आपके क्या ध्यान देगा, उसकी स्क्रीन में ध्यान देगा। So already I mentioned all the topics. I tried my best to understand you. Okay. So this is screen of NTA, and thank you so much. This is my last and thank you screen. So thank you, sir, Saurabh sir. Thank you, Hitesh sir. Really, you have touched upon every aspect of GPAD right from the starting. I was watching the slides, like philosophy of a student and what they think in their primary years and ending years. And afterwards, you touch upon the syllabus, course curriculum, books, and various tricks and tips, mnemonics, and in domestic as well as international prospects of pharmacy, concentrating specifically to North America, Canada, PEBC exams you have touched upon. So really, in pharmaceutical domain, it is not mandatory, but at every point, either it is diploma, you have to face exit exam. If it is Yes. degree, you have to go for GPAD. If it is farm, you have to go for NAPLEX or MOH or DHA or PEBC. Or if it is any competitive public sector job, you have to face multiple choice questions or drug inspector, journal licensing authority, sample assistant. So really, it is, sir. I know this much amount of time on Sunday you have dedicated, and that much amount of talking in a very extensive logical manner is required. So once again, I am thankful to you on behalf of IAC, that is Internal Quality Assurance Cell of ISFCP Moga Punjab. So we all are very thankful to you. Hope so. This presentation and video of yours will be beneficial to the budding pharmacist, and they will follow these tips and tricks. So thank you so much, sir. And in future Yes, also, I sir. want to Thank you have to your you. services. Thanks to you, sir. Yes, yes, sir. Thank you so much, sir. Okay.